ہمارا خداوند جب قربانی دیتا ہے تو وہ بھی خوشبو ہے، اور جب اس قربانی پر ہم ایمان لے آتے ہیں اس کفارے پر جو ہمارے خداوند یسوع المسیح نے کیا، تو ہمیں بھی خوشبو بنا دیتا ہے، اور دونوں کے لیے کئیوں کو یہ خوشبو سوکھ کے موت آ جاتی ہے، لکھا ہوا ہے ہلاک ہونے والوں اور دوسروں کون کیونکہ ہم خدا کے نزدیک نجات پانے والوں اور ہلاک ہونے والوں دونوں کے لیے مسیح کی خوشبو ہیں۔ مسیح کی خوشبو ہے دونوں کے لیے۔ کون؟ ہم جو خداوند یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے، اور دونوں باتیں، کئیوں کو ہماری خوشبو آتی ہے وہ نجات پا جاتے ہیں، اور کئیوں کو ہماری خوشبو آتی ہے تو ان کی ویسے موت ہی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں خوشبو کا تو کوئی قصور نہیں، پرابلم بندے میں ہوتی ہے، بندے میں تو اپنی پرابلم پہ ویسے پیارا مار دیتا ہے۔ اچھا پوائنٹ ہے جی، اردو میں لکھا ہے تیل۔ ہر عید قیام یہوہ کے یسوع المسیح کے بشری وجود میں خیمہ زن ہونے کی یاد تازہ کرتی ہے۔ عید قیام کیا ہے؟ عید قیام تجسم کا اظہار ہے عید کے طور پہ۔ کیوں کہ عید قیام میں خیمہ لگایا جاتا ہے، اور یہ خیموں کی عید ہے، ہماری توجہ خیمے کی طرف لگائی جاتی ہے۔ اور خیمہ کیا ہے؟ خداوند یسوع المسیح نے خیمہ جو ہے وہ یہوہ کا تجسم، یہوہ کا مجسم ہو جائے۔ تو عید قیام کے ہم کیا مناتے ہیں؟ عید قیام پر ہم یسوع المسیح کا تجسم مناتے ہیں، یہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا خداوند جو یہوہ ہے وہ جسم میں ظاہر ہوا، اور جسم ایک خیمہ، یہوہ نے جب جسم میں ظاہر ہونا چاہا اور ایسا خیمہ بنانا چاہا جو ہاتھ کا بنا ہوا نہیں، تو اس نے یہودی بدن چنا۔ کون سا بدن چنا؟ بدن تو بہت سارے ہیں، لیکن کون سا؟ یہوہ نے یہودی بدن چنا، اور یہودی بدن میں ظاہر ہوا، اور اس یہودی بدن کا کفارہ صلیب پر دیا گیا۔ تو ہم کس بدن کے کفارے پہ لگے؟ تو گورے کا تو بدن ہی نہیں تھا، دنیا ساری گورے کے پیچھے لگی ہے۔ گورے جو بدن کا تو کفارہ ہی نہیں ہوا، جو کفارہ خداوند یسوع المسیح نے دیا وہ یہودی بدن ہے۔ بارہ کیا؟ اور خداوند یسوع المسیح اسرائیلی ہے، خداوند یسوع المسیح کسی غیر قوم سے نہیں ہے، وہ اسرائیلی ہے اور یہودی ہے، اور شاہی کہانت سے ہے، اور شاہی خاندان سے ہے۔ یا آپ کو یہ بھی کلیئر کر دوں، بڑا یہ بتایا گیا کہ وہ مقدسہ مریم اور یوسف غریب تھے، ہے نا؟ اچھا جو غریب ہوتے ہیں سرائے میں جاتے ہیں، کیوں نہیں؟ مطلب اگر غریب ہو تو کہے جی میری بیگم حاملہ ہے کہ میں جی 5 اسٹار ہوٹل سے جا رہا ہوں، تو غریب کیا خیال ہے؟ تو بھائی یہ جھوٹ بولتے رہے ہیں، نہ مقدسہ مریم غریب ہے نہ یوسف غریب ہے، وہ سرائے میں گیا، جیب میں پیسے ہیں تو سرائے میں کپڑا لینے گئے ہیں، وہ تو سرائے میں جگہ نہیں تھی، اور دونوں یہودا کے گھر سے ہیں، یوسف بھی یہودی ہے، مقدسہ مریم بھی یہودی ہے، اور شاہی خاندان سے، داؤد کے گھرانے سے، غریب ہوئے، وہ تو غریب تھے ہی، صدیوں سے ہمارے ساتھ جھوٹ بولتے رہے، وہ جی غریب جان، وہ تو شہنشاہ نہیں تھے، غریب تھے،
खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह, उनके घर में आया, वो गरीब थे? सारी दुनिया गरीब है उनके सामने, ये कायनात गरीब है उनके सामने। हर ईद क़याम जो हवा के यस्सुल मसीह के बशी वजूद में ख़ैमाज़द होने की याद ताज़ा करती है। पॉइंट नंबर 10 है, 10वां है, लिखा है कि खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। अच्छा, यहाँ पे जरा गौर करें, खुदा आप है, इसका मतलब है खुदा खुद क्या होगा? उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। खुदा आप, खुदा खुद, दूसरा नहीं, है ना? ये मैं दूसरे वालों को शॉर्ट टर्म में कह रहा हूं, ठीक है? थोड़ा वक्त रह गया, मैं दूसरे वालों को भी सीधा करूंगा। अभी हम मसरूफ है, असल में हम जॉब भी करते हैं, खिदमत भी है, वक्त नहीं है। और बात तो वक्त मिल गया तो फिर देखें, मैं दूसरा तीसरा सारा सीधा कर दूंगा। तो क्या लिखा है? खुदा आप, खुदा खुद उनका खुदा होगा और उनके साथ रहेगा, ना दूसरा ना तीसरा। मुकाशफा 21:3 है। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान। हाँ, देख खुदा का खैमा कहाँ है जी? खुदा अपने लोगों में बसना पसंद करता है। जो खैमा इज्तिमा दिया गया वो इस बात का इजहार था कि मैं अपने लोगों में बसना पसंद करता हूँ। खुदावंद ये कहना चाहते हैं। और फिर खुदावंद ने ये भी वादे कर दिया कि वो हाथ के बने हुए घर में नहीं रहता। फिर उसने वो घर बनाया, खुदा का बेटा, जो हाथ का बना हुआ नहीं है, और उसमें वो रहता है। और फिर कहा गया कि देख, फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुलह करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। खुदा आप उनके साथ रहेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनका खुदा होगा। आप उनका खुदा होगा, किसी दूसरे को नहीं बुलाएगा। इधर आ जा खैमे च जाके बस ते फिर तू उन्हों का खुदा हो, ऐसा तो लिखा ही कोई नहीं। ये सारी स्टोरी है। तो देख खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान, ये खैमा कौन है? ये खैमा जो हाथ का बना हुआ नहीं है, आदमियों के दरमियान है, ये खुदा का बेटा है। ये वो बशरी वजूद है जिसमें यहोवा जाहिर हुआ है। ठीक है, एक दफा और पढ़ दीजिए ये वाला। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुलह करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। हमारा खुदा यहोवा हमारे दरमियान सुकूनत भी करता है और हमारा खुदा भी है और हम उसके लोग। जैसा हमसे अगला वाला जी यूहन्ना 12:44। यीशु ने पुकार कर कहा कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो मुझ पर नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले पर ईमान लाता है। अच्छा, यीशु ने पुकार कर क्या कहा? जो मुझ पर ईमान लाता है वो मुझ पर नहीं, क्या क्या करिए? जो मुझ पर ईमान लाता है वो मुझ पर नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले पर ईमान लाता है। तो भेजने वाला कौन है बेटे?
यीशु पर ईमान रखना, किस पर ईमान रखना है? हालेलुया। आगे नहीं घुस गया। और जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। आगे जो मुझे फिर क्या कहा? जो मुझे देखता है वो किसको देखता है? मेरे भेजने वाले मेरे भेजने वाले को देखता है। तो किसको देखता है फिर? यहोवा को। जो हवा को देखता है। तो जो यीशु को देखता है, जो हवा को देखता है। तो क्या फर्क हुआ यीशु में और यहोवा? यीशु जो हवा है, जो यहूदी बदन में जाहिर हुआ और अल मसीह कहलाया। अब लोगों को तो इस जुमले की समझ नहीं आई। डॉक्टर ऑफ डिविनिटी को जुमला नहीं समझ आ रहा। दोबारा को यीशु जो हवा है, यहूदी बदन में जाहिर हुआ और अल मसीह कहलाया। साड़ी पे टोपी सिर पे ही है, कईयां दा प्याला उठ गया। क्यों? इस जुमले को समझना आसान नहीं। तो याद रखें कि यीशु ही यहोवा है, यहोवा ही यीशु है। हालेलुया। ना कोई दूसरा है ना कोई तीसरा। और ये भी मैं बयान कर दूं, एक ही खुदावन है यहोवा, वही बाप में, वही बेटे में और वही रूह कुदस में जाहिर होता है। एक ही यहोवा, वही बाप में, वही बेटे में और वही रूह कुदस में जाहिर होता है। तो दूसरा तीसरा खुदा तो है। ये कहना कि बाप जो जाहिर हो रही अल्लाह को खुदा चाहिए, बेटे जो जाहिर हो रही अल्लाह को खुदा चाहिए, रूह कुदस जाहिर हो रही, एक तो तीसरा खुदा भी चाहिए। इस किस्म की तो बाइबल में कोई तारीफ नहीं है। एक खुदा है, उसके कई जरूर है, वो जिस मर्जी दूर में आ जाए और वो बैक वक्त तमाम लोगों में मौजूद है। एक नहीं वो जरा एक एक धूर च खुदा है ना, वो फिर दूसरे चली ना जा सकते। इनका ख्याल है कि जो खुदा बाप में है ना, वो फिर अब बेटे में नहीं जा सकता। वो उधर कन्फाइन हो गया, यानी उसको हद लग गई है बाप में। भाई तो वो तो अपने तमाम जरूरों में बैक वक्त मौजूद है। जब हम दुआ करते हैं, आप सोचे तो, जब मैं और दुआ करते, मैं और आप दुआ करते, अच्छा कितने लोग इस वक्त दुआ कर रहे होंगे पूरी दुनिया में? कितने लोग? अरबों। अच्छा इस दुआ को कितने खुदा सुन रहे हैं? तो जो यहोवा अरबों लोगों की दुआ अकेला सुन सकता है, तो वो बाप और बेटे और रूह कुदस में अकेला नहीं हो सकता। इसी तरह वो तो अपने तमाम जुरों में, तमाम कायनात में बैक वक्त मौजूद है, हर जगह बैक वक्त मौजूद है। तो इस किस्म की जो तालीम है, यहोवा को तीन में तकसीम करने वाली, खुदा को तीन में तकसीम करने वाली, ये यहोवा की हद बंदी करती है और ये कुफर है। लामहदूद को तीन में महदूद करना कुफर है, क्योंकि वो लामहदूद है, उसे कौन महदूद कर सकता है? बस एक फिलॉसफी है कि वो जी मैं फिर तेरे दिमाग च आया, अच्छा तेरे दिमाग च आया सी, फिर तू अपने कोल आ काम नहीं कर। तेरे दिमाग की गल और बाइबल की गल नहीं पड़ती। अपने दिमाग की बातें अपने पास, बाइबल की बातें अलग है। अच्छा दूसरी बात यह है, एक तो हमने ये बात की कि
कितने अरब लोग इस वक्त दुआ कर रहे हैं। अच्छा आसमान पे पता नहीं कितने फरिश्ते गुलाम के हम बता रहे हैं, अकेला ही सुन रहा था। तो निजात का काम किया नहीं था, निजात का काम हुआ तो कहते ना हमारे जरूरी है। एक कुत्ते रह गया कि बेच रहेगा, एक खाली रहेगा, एक सूरी चढ़ेगा, दो वेखण कौन सी खिलाफी है? अच्छा जी बात, जितनी दुआओं को यहोवा सुनता है, हर वो दुआओं को यहोवा सुन रहा है। सबकी दुआ एक है, हर एक की दुआ अलग है। तो जब दुआ ज्यादा तो सबके जवाब एक है या अलग? तो अरबों जवाब यहोवा के ला बैक वक्त दे रहा है। ये सोच देने के एक को ज्यादा फिर थोड़ा ही पहले क्या और भाई इस किस्म की ये आपके दिमाग की इस तरह है, वो तो लामहदूद खुदा, यहोवा लामहदूद है, वो तो कायनात में समा नहीं सकता, आसमानों के आसमान में समा नहीं सकता। अच्छा 10वां पॉइंट है जी, उसका आखिरी हवाला है यसाया 42 बाब आ गया। यहोवा मैं हूँ, यही मेरा नाम है, मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए और अपनी हम खोदी हुई मूर्तों के लिए रवाना रखूंगा। हाँ जी, यहोवा मैं हूँ, यही मेरा नाम। अच्छा कईयों को ये पता नहीं कि जिस खुदा को हम मानते हैं उसका नाम यहोवा। एक खानदान था, वो भी हमारे पास कभी एक दो दफा आ गया, तो उसे यहोवा नाम घर वाले कहने लगे ये कौन है? अच्छा ऐसे नहीं है, मैं ये ऐसी बात नहीं करता, किसी का नाम नहीं लेता, ऐसे नहीं है। कहते कि असी तो जी ईमानदार। अच्छा ईमानदार में ये नहीं पता जेड़े खुदा अभी मानने वाला ना ही होगा। तो बाइबल क्या है? यसाया 42 बाब 8 है। यहोवा मैं हूँ, यही मेरा नाम है, मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए और अपनी हम खोदी हुई मूर्तों के लिए रवा ना रखूंगा। यहोवा मैं हूँ, यही मेरा नाम है, और मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए। वो तो कहता है मैं अपना जलाल किसी दूसरे को देता ही नहीं। तो फिर दो और को जलाल कैसे मिल गया? अगर वो यहोवा खुद नहीं है, क्या क्या कैसे मिल गया जी? मिल नहीं सकता। किसी दूसरे शख्स को, किसी तीसरे शख्स को यहोवा अपना जलाल नहीं देता, और अपनी हमद खोदी हुई मूर्तों के लिए रवा नहीं है। और क्या शाम तो खुदावंद यीशु मसीह हरगिज़ दूसरा शख्स नहीं है, क्योंकि अगर खुदावंद यीशु मसीह दूसरा शख्स हो तो यहोवा किसी दूसरे को अपना जलाल देता नहीं। और रूहुल कुद्दस हरगिज़ तीसरा शख्स नहीं है, क्योंकि अगर रूहुल कुद्दस तीसरा शख्स हो तो यहोवा दूसरे को अपना जलाल नहीं देता, तो तीसरे को क्या करेगा? नहीं। तो बाप में भी यहोवा ही है, बेटे में भी यहोवा ही है, और रूह कुद्दस में भी यहोवा ही है। ये उसके एक यहोवा के जो तीन ज़हूर है, और सिर्फ ये तीन ज़हूर नहीं है, यहोवा की और भी ज़हूर है। तो इसलिए सिर्फ यहाँ पर कहना कि ये तीन खास बात है, बाइबल में कोई तालीम नहीं है। बालक या शाम से आप सबको तजस्सुम यीशु मसीह मुबारक। ये ईद क़याम तजस्सुम यीशु मसीह का इज़हार है।
کیونکہ یہ خیموں کی اینٹ ہے. بارو کیا کام. اپنی آنکھوں کو بند کریں, سر کو جھکائیں. اور بھائی سلیم کو میں بلاؤں گا اور شکر گزاری کے لیے